and actually it's been kind of a tradition that after every season of Big Boss Marathi, I usually like to host a party so that we all can come together and forget all the negativities in the Big Boss and remember all the positive things. So after the first season we had a party, after the second season we had another party. Third season ke baad, obviously because of the pandemic, it was getting a little difficult to organize this event. But finally, this is the right time and all three seasons are coming together. इतना ही नहीं तो जो हिंदी में मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं हिंदी बिग बॉस में, थोड़े लोग बाहर आज काम कर रहे हैं लेकिन काफ़ी सारे यहाँ पे मुंबई में हैं, तो आज ज़रूर वो भी आएंगे. दे वुड लाइक, आई मीन, सो इट्स नॉट ओनली मराठी, इट इज़ फॉर ऑल माई फ्रेंड्स, एवरीबडी. Actually, in fact, everybody who's been a part of Big Boss is welcome to my party. I would love to have them all because this entire journey has really made us rediscover a lot of things about ourselves, and it is just a reminder for us कि वो जो discovery हुई है, जो rediscovery हुई है, it's kind of a remembrance, or you can call it a reminder for us to still be grounded and connected, because Big Boss is such a platform कि किसी को भी इधर से वो इधर ज़मीन पे ला देता है, और वो ज़मीन पे रहना बहुत ज़रूरी है. एंड दिस इज़ समवेयर it is for us to be together and be connected to each other and be grounded as well. Can we see you in the Hindi Big Boss? No, I think, you know what, I've already done the Marathi Big Boss, so I'm pretty happy with this entire journey. I think Hindi again, I don't think so, but I think I'm good with this one journey. It was really a beautiful journey for me, तो बहुत अच्छा लग रहा है. And first of all, yes, I want to definitely thank BPM for being the location partner and hosting this event with me. So thank you so much, BPM. And also I would like to thank Picture and Craft, my very good best buddy out here. Come here. Achha, she doesn't want to come, she's shying away. Parul is here, right here. Thank you so much, Parul, because without you this event was simply not possible. And we also have very important partners this time. We have Scribble and Pop Events, and I would like you to meet my friend. Come. So I have my friend Kunjal with me here. And the entire, she has curated the entire decor of this place, which is very amazing. I think it's beautiful and it's very classy. I loved it. So I think she's been an important part of my this party today, this evening as well. Thank you so much. How was your experience? Was great. Okay, the evening is still about to start. I would definitely ask her that probably by the end of the evening. Yes. So Big Boss की पार्टी Big Boss की बात की जाए तो हिंदी और मराठी both have been so sought after. आपके opinion में जो अभी current हिंदी season के Big Boss contestant आपका कौन favorite है और क्यों? Oh my God, कौन favorite ना? Of course, I mean, see, everybody has their pluses and minuses. कोई चीज़ें किसी में अच्छी लगती है, कोई चीज़ें कोई में खटक जाती है. But I think हिंदी की बात करें तो obviously we had very good players this time. It's very important how you look at the game. कि आप इंसान अच्छा ढूंढ रहे हो या एक प्लेयर अच्छा ढूंढ रहे हो. Everybody has different mindsets to it. So I will not say take a particular name. अगर कोई मुझे इंसान अच्छा लगा है, as a human being अच्छा लगा है, किसी की strategy अच्छी लगी है, किसी का बर्ताव अच्छा लगा है, so it is very different. I will not like to name one person because everybody is very different in their own way and everybody is very special, and that's the reason they are in Big Boss. It's not an easy game. बहुत आसान नहीं है यहाँ रहना, वो भी इतने दिन. तो everybody is unique in its own way. Thank you. Rolling or set? Rolling it. And he's been a very important support for me while I was in the Big Boss house, but moreover while I was still there and from outside for some particular, I think he would have been the finalist for sure, but for some particular reasons he had to leave the show in between, but due to health reasons, yes. But he has supported, he stood by my side rock solid and was supporting me from outside, so thank you so much, Sushant. I still remember, मुझे याद आ रहा है, I remember all those moments that you were really working hard and you were out and you were really doing everything that you could do and wanting me to win. Thank you so much, and thanks to you, because of you I think I was there in the finale as well. Thank you. What do you want to say about the party? कुछ नहीं, बहुत खुशी हो रही है कि 3 साल के बाद हम सारे लोग मिल रहे हैं. एक तो 2 साल का लॉकडाउन का पीरियड था, वो सभी के लिए टफ था, और ये पार्टी जो है ये एक बहाना है, लेकिन स्मिता गोंदकर
ये जो कुछ भी अरेंज कर रही है पिछले 3 सालों से, वो सिर्फ वही कर सकती है। तो आई एम वेरी हैप्पी, सबको मिलने के लिए बहुत तरस रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि आज की शाम बहुत रंगीन होने वाली है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। कोई एक पर्टिकुलर मेमोरी जो बिग बॉस हाउस की आप शेयर करना चाहते हैं? बिग बॉस में तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है, काफ़ी सारे एक्सपीरियंस होते हैं, लेकिन टास्क अगर खेलने को ना मिले तो बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन बिग बॉस में अगर कोई मेरा सबसे ज़्यादा करीबी दोस्त है तो वो स्मिता गोलकर है, और वही मतलब मैं आपको इस बहाने बताना चाहूँगा। थैंक यू। नॉर्मली मराठी बिग बॉस से हिंदी बिग बॉस में काफ़ी जाते हैं, क्या आपको हिंदी बिग बॉस में हम देख पाएंगे? जी, मैं बहुत खुशी है, मैं मराठी बिग बॉस में पार्टिसिपेट था और मैं एक ही बिग बॉस से खुश हूँ। अभी मैं बिग बॉस में नहीं जाना चाहता। थैंक यू। बताइए। स्मिता देन रेशमा ताई भी आई थी, उन्होंने भी मुझे बहुत मोटिवेट, बिकॉज एक टाइम आ गया था कि जहाँ पे मैं अपने आप को खो बैठी थी और मुझे ऐसा इमोशनली मैं ब्रेक डाउन हो गई थी। सो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी, लाइक दिस ऑल मेमोरी, आई थिंक एक भी मेमोरी मैं भूल नहीं सकती हूँ बिग बॉस के बारे में। एंड इट मेक्स मी, आई डोंट नो, मैं अभी भी गुज़बॉम्स आ रहे हैं और इट इज़ द बेस्ट थिंग एवर हैपेंड इन माई लाइफ। बिग बॉस की मराठी की जर्नी जिस तरह से लोगों ने देखी, लोगों ने काफ़ी पसंद किया, और फिर लोगों की डिमांड आई आप हिंदी बिग बॉस में काफ़ी सालों से चर्चा चलती आ रही। बिग बॉस का नया सीजन भी आ रहा है, क्या आपको देख पाएगा? इसमें मैं यही बोलूँगी वो चैनल पे डिपेंड होता है। ऑब्वियसली बीइंग एन इंडिविजुअल आई वुड ऑलवेज वांट कि मेरी तरफ से मैं क्या हूँ, कैसी हूँ, मैंने अब मेरी अपब्रिंगिंग कैसी है, मैं कैसे दोस्तों के साथ बैठती हूँ, उठती हूँ, और ये इंडस्ट्री में उसकी बैकग्राउंड इंडस्ट्री में कुछ नहीं है, उसने अपने आप को यहाँ पे खड़ा कैसे रखा है, मुझे ये अच्छा लगेगा अपने बारे में बताना। और लोगों के साथ मैं कैसे डील करती हूँ, कैसे बातें करती हूँ और अपनी लाइफ में, बिकॉज आई गो थ्रू लॉट ऑफ थिंग्स एवरी डे एवरी मिनट इन माई लाइफ। तो मेरे लिए वो बहुत एक्सपीरियंस अमेजिंग होता है, बिकॉज आई लव टू बी लाइक दैट। सो हाँ, अगर आया तो ऑब्वियसली आई विल बी इन फॉर इट, बट आई डोंट थिंक सो, बिकॉज मुझे बिग बॉस ऑलरेडी खेलने आता है, दे विल नॉट टेक द सेम आर्टिस्ट, आई डोंट नो। लॉकअप की मैं चर्चा करूँ, लॉकअप तो सबको पता है, लॉकअप एक शो भी है, यू आर ऑल्सो देयर इन अ रियल लॉकअप। तो हम आपको जो रियलिटी शो का लॉकअप है उसमें कब देख पाएंगे? सो आपको ये पता है मैं लॉकअप में थी। ओके, सो आई डोंट केयर, आई वॉज इन अ लॉकअप और वो रिजल्ट मिल जाएगा लोगों को, आई डोंट केयर, बिकॉज आई नो आई एम नॉट रॉन्ग एंड आई एम ट्रू टू माई सेल्फ। अगर मैं अपने आप से सच हूँ तो मुझे कोई नहीं खिला सकता। सो और जो लॉकअप चल रहा है, इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड ड्रामेदार लॉकअप है, जो कि मेरे में थी तब मेरे लाइफ में भी वो एक लॉकअप इसलिए मिले बहुत ड्रामेदार बन चुका था। सो आई थिंक मुझे रियलिटी लॉकअप जो इसका लॉकअप है, मुझे मुनावर ज़्यादा पसंद है एंड आई एम लाइकिंग जो हिसाब से उसका क्रिएटिव है, जो चीज़ें कर रहा है, उसको लिटरली फन वे में भी ले रहा है, क्योंकि लॉकअप में यू कैन हैव फन, यू कैन डांस, यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। सो आई हैव ऑल्सो डन फ्यू थिंग्स इन माई रियल लॉकअप, सो आई नो कि what is Munawar doing is doing the best. I don't know, my best wishes only to Munawar. So when you were there were so many friends, fans who stood by you, supported you. उन सारे fans को क्या कुछ कहना चाहोगे? That is no words will not explain that. That's just this. It's my eyes. You will understand. I'm giving my truth and my deepest feeling to all my fans, because I am standing right back with you. It's only because of you. Would you like to clarify these? My actions. I have already mentioned. Action will talk. Words will not. Okay, so आगे वाले समय में क्या प्रोजेक्ट आप शेयर करना चाहोगे? I don't want to share right now. There is lot of coming, but you will see this. तो बहुत इंटरेस्टेड होता है सुनने में, बट आई एम नॉट टेकिंग दैट बिग बॉस वाली पार्टी, आई जस्ट चिल अराउंड दैट्स इट। कोई ऐसे दोस्त जिससे मिलने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हो, बिकॉज ये हिंदी मराठी काफ़ी चल रहे हैं यहाँ पे। ओके कोई यार, मराठी बिग बॉस में आई नो आदिश, हीना, दैट्स इट, और किसी को ज़्यादा नहीं जानता, बट अगर कोई हिंदी वाला आता तो श्वेत सी में भी किसी को जानता। शो की मैं बात करूँ, जिस तरह का आपको क्या मिला है शो में, और क्या कुछ कहना चाहोगे अपने फैंस को? यार
मज़ा आ रहा है यार करने में, कुछ नई चीज़ करने को मिल रही है, आगे कुछ डिफरेंट चीज़ें आने वाली हैं जो मुझे एज एन एक्टर करने में बहुत मज़ा आने वाला है, तो मैं एक्साइटेड फॉर दैट। हाउ डू यू सी रीम एंड एज अ होस्ट? रीम एंड ज़ैन यार, मुझे पहले मेरे थॉट्स ऐसे थे कि मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम होगी, बट सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया एंड आई एम वेरी कंफर्टेबल विद बोथ ऑफ देम एंड दे आर वेरी वेलकमिंग एंड वेरी स्वीट विद एवरीबडी। एक्चुअली हम तीनों के साथ में शूट करने में बहुत मज़ा आया। And if you want to pick a best thing about them as a co-star and a friend, what will be that? यार about Zain, he's very down to earth and you know he'll give you that vibe कि आप एक comfortable हो जाओगे उसमें, so that's the best thing about it. Thank you. बिग बॉस घर में 15 लोग कितनी मस्ती करती है। आज इंटू 3 टाइम्स होने वाला है, तो बहुत धमाल होने वाला है। सो वी आर वेरी हैप्पी एंड सुपर एक्साइटेड। Any memories would you like to share of Big Boss? Any बिग बॉसची काही मेमरी खूप सारे मेमरीज आहेत. हां, बिग बॉस मेमरेबल आहे. आम्ही तो करायचा प्रयत्न केला आणि मी स्मिताला खरंच थँक्यू म्हणते. इनफॅक्ट मगासपासून मी तिला शोधते, कुठे मला सापडत नाही आहे ती. तर खरंच थँक्यू म्हणायचं आहे तिला, कारण एवढी लोक एकत्र येणं नॉट पॉसिबल आणि ते खरंच ती दरवर्षी करते. खूप छान वाटतं. कोई ऐसा डिफरेंस बिग बॉस हिंदी और मराठी में क्या डिफरेंस मुझे क्या लगता है लैंग्वेज को छोड़ के? मुझे एक चीज़ लगती है कि मराठी बिग बॉस बहुत ही कनेक्टेड है, बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड है। ऐसा लगता है कि इमोशंस को सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी दिया जाता है, और हिंदी में वो थोड़ा कम है, लेकिन मराठी में वो ज़्यादा है। As now the kind of response Marathi Big Boss is getting, Hindi Big Boss was always on the top. Now the Marathi Big Boss is also making a Yes. tough competition. Yes. What message would you like to give? फैंस से ते नाही बोलतो. फैंस को तो मैं यही कहूँगी कि हर रियलिटी शो अपने आप में एक दिलचस्प एक शो है, और मराठी बिग बॉस सच में म्हणजे तो एवढा वरती चालला आहे की हिंदीला पण खूप वेळा त्याने बीट केलं आहे. आमचे खूप सारे वीकेंडचे असे होते एपिसोड ज्यांनी हिंदीला पण बीट केलं आहे. तर ऑडियन्स फक्त आणि फक्त एन्जॉय करणार आहे, आणि आय एम शुअर नेक्स्ट सीझन मराठीचा अजून टफ होणार आहे. वी हॅव सेट दॅट बेंचमार्क. नेक्स्ट सीजन मराठी बिग बॉस में आपको देख पाएंगे आप लोग फिर से? हां, मला तर जायला खरंच आवडेल, कारण कसं आहे आतमध्ये गेल्यानंतर खरंच विसरून गेलो. जसं हिंदी बिग बॉस आणि मराठी बिग बॉसमध्ये काय वेगळेपण आहे असं जर मला विचारलं तर मी खरं सांगेन, जसं ही म्हणाली की आपण काहीतरी ठरवून आलो म्हणून खेळायचं असं नाही होते. प्रॉपर आपण जसे आहोत तसेच प्रेझेंट होतो. सच्चेपणा खरेपणा असतो मराठी ऑडियन्सला, तेच कळतं. आणि मला वाटतं हिंदी ऑडियन्स पण खूप सारं आहे ज्यांनी मराठी बिग बॉस बघितलं, तर हेच वेगळेपण आहे मराठी बिग बॉस. आणि 4थ्या सीझनमध्ये जायला तर खूप मजा येणार आहे, कारण जे राहून गेलेलं आहे ना काही काही गोष्टी, त्या तिथं जाऊन धमाल करायचे. हे आवडेल आम्हाला. मैं भाग रही हूँ. मुझे चलेगा मैं भाग रही हूँ. वो फुल ऑन एंटरटेनमेंट होगा, और क्या होगा। अच्छा, मुझे चलेगा। तो मैं तो ये पहली बार सुन रही हूँ, अगर वो बना रहे हैं तो अभी अनाउंस किया है, तो उनको ऑल द बेस्ट। और आप उसका हिस्सा बनना चाहोगे तो आप ज़रूर बन सकते हो। हाँ, मैं इस तरह से हिस्सा बनना चाहूँगी कि उनको मैं मिलूँगी और पहले ये पूछूँगी कि आपके मूवी का नाम क्या है। तो ये बहुत बड़ी बात है ना, तभी तो देखेंगे ना हमारे ऑडियंस जो है। तो अभी जा रही हूँ मैं, चलो। थैंक यू सो मच। गेट टुगेदर फ्रेंड्स की किस तरह की एक्साइटमेंट है आज की? मुझे नहीं लगता ये कोई और
और कर सकेगा स्मिता के अलावा, आई थिंक, बिकॉज शी इज़ अ वेरी प्योर सोल एंड शी इज़ अ वेरी गुड सोल एंड ये थॉट भी किसी के दिमाग में आना बहुत बड़ी बात है और ऊपर से उसको करके दिखाना, इट्स नेक्स्ट लेवल। सो आई थिंक हर साल वो पार्टी रखती है, जैसे सेकंड सीज़न के लिए भी रखी थी, अब ये थर्ड सीज़न है, तो थर्ड सीज़न में तीनों सीज़न के लोग हैं। हम भी काफ़ी कम मिले हैं, मैं तो थर्ड सीज़न में गई थी अंदर, बट ये जो वो मौका देती है एक दूसरे को पहचानने का, घुल मिलने का, आई थिंक ओनली स्मिता कैन डू इट बिकॉज शी इज़ अ लवली पर्सन एंड आई जस्ट लव हर। कोई ऐसी मेमोरी जो आप शेयर करें? येस ऑफ कोर्स, माय सीज़न वाज द फर्स्ट सीज़न, पहला सीज़न था और इस सीज़न में अगर मुझे कुछ मिला है तो ऐसे दो दोस्त कमाल के मिले जो ज़िंदगी भर मेरे साथ रहेंगे। उसमें से एक है स्मिता ऑफ कोर्स और दूसरा आस्था। व्हाट डू यू थिंक बिग बॉस मराठी और हिंदी बिग बॉस में क्या डिफरेंस है अपार्ट फ्रॉम लैंग्वेज? गेम इज़ द सेम ओनली, आई डोंट थिंक सो गेम इज़ डिफरेंट। दोनों जगह गेम सेम ही है, खाली लोगों का तरीका उसे खेलने का अलग है, क्योंकि यहाँ महाराष्ट्रियंस होते हैं तो मराठी लोग होते हैं, तो मराठी होता है हर किसी के इस मराठी लोगों के सोचने का तरीका अलग है। वहाँ मतलब नॉर्थ से भी होते हैं, साउथ से भी होते हैं, गुजराती तो हर इंसान अलग अलग प्रांतों से आता है, तो सोचने का अलग, तो दे रिएक्ट डिफरेंटली। सो इसलिए वो गेम बहुत अलग दिखता है। क्या आपको बिग बॉस हिंदी एक्सप्लोर करते हुए देख सकते हैं आप? और क्या हम आपको बिग बॉस में देख सकते हैं? बिग बॉस हिंदी की अभी ऑलरेडी जब मैं गेम जानती हूँ, मैं गेम समझती हूँ, मुझे पता है गेम कैसे खेलना, वो बेवकूफ़ थोड़े मुझे वापस बुलाएंगे। So see you, bye. When we came out of Big Boss, even then also she had hosted a party for us. She has this such a sweet gesture that she makes every year, makes it a point to bring all of us together. Memories are of course coming back because our season seems like it happened ages ago because of the lockdown, but now all of us are going to meet today. We're just going to have fun. That is all I'm looking forward. Is there any Big Boss memory you like to share that always there in your heart? The best memory that I can remember from my season is when I was standing on that podium where the whole journey of our Big Boss season was shown to me, and then when Big Boss praised me and said that the house and Big Boss, whom I had considered as a father figure, would never forget a daughter that he got in that season. I think when he said that, that was very emotional for me, and that's absolutely memorable for the rest of my life. Now that the kind of Big Boss Marathi is getting, initial script the Big Boss Marathi was not getting that kind of response. Now you are the part of that. How do you see the Big Boss Marathi and how do you see the Big Boss Hindi? I think the space is different. I think even there's a difference between two consecutive seasons of language. Let it be Marathi or Hindi or Tamil or any language that Big Boss happens in. The place, the space, the home, the house is made of the people it consists. So वहाँ पे जो लोग होते हैं, जो 15-17 लोग वहाँ पे रहते हैं, वो सीज़न बनाते हैं, इसलिए हर सीज़न अलग होता है, हर सीज़न इंटरेस्टिंग होता है और एंटरटेनिंग होता है। Thank you so much. Thank you so much. आज reunion की शाम किस तरह से excitement है? एक्चुअली बिग बॉस सीज़न 3 में हम थे और 3 के जो कंटेस्टेंट हैं हम 2-3 बार मिले हैं, लेकिन जो फर्स्ट सीज़न है, सेकंड सीज़न है, उनको सिर्फ हमने टीवी पे देखा है या फिर हम कभी मतलब मिले नहीं है। तो ये रीयूनियन जो है वो बहुत अच्छा है और हमें भी इनवाइट किया, तो स्मिता जी ने जो एक अच्छा गेट टुगेदर रखा है, तो हम बहुत खुश हैं कि हम सभी इकट्ठा होंगे और आगे भी जो है वो जो मिलकर आगे कांटेक्ट में रह सकते हैं। मैं भी अभी सीज़न 3 में थी, थोड़ा लाउड नहीं ओके ना, सीज़न 3 में थी और फर्स्ट और सेकंड सीज़न के जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं वो सब एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स थे, क्योंकि मैं सेम लाइन में काम करती हूँ, ये तो बाहर से हम लोग तो मिलते रहते थे, हम लोगों की बातें भी होती थी। लेकिन ये था कि थर्ड सीज़न में जब मैं गई और मैंने देखा कि एक्टर्स बहुत कम हैं और कोई मॉडल है, कोई मतलब जैसे जय था, विशाल था, तो बाहर से आए हुए मुझे सब नए थे मेरे लिए। लेकिन
ये जो मेरे पुराने जो दोस्त थे उन्होंने मुझे कहा था अंदर कैसे रहना है, क्या करना है, लेकिन मज़ा आया। और स्मिता ने ये जो पार्टी आज अरेंज की है तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ये इस मौके पे आज हम लोग फर्स्ट और सेकंड सीज़न के सभी लोगों को मिल सकते हैं और हम गेट टुगेदर कर सकते हैं। ओके मैम, सोशल की बात करें, सोशल में आप काफ़ी मंदिरों के लिए काफ़ी मदद कर, उसके विचार किस तरह से विचार आते हैं? मैं एक सोशल वर्कर हूँ और जेंडर इक्वालिटी, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करती हूँ और जिस तरह से काम किया है इसीलिए जो देश में एक एग्रेसिवली में काम करती हूँ, इसीलिए बिग बॉस में भी बुलाया गया। और मुझे एक अच्छा लगा कि ये सब जो है वो एक्टर एक्ट्रेस इसमें थे, लेकिन इस बार सोशल वर्कर भी उन्होंने बुलाया था। और जब सीज़न 3 में हम गए तो बहुत अच्छा थीम भी उन्होंने किया था, सब महिलाओं को लेकर थीम उन्होंने की, तो बहुत अच्छा लगा, अच्छा एक्सपीरियंस है। बहुत लोग कहते थे कि बिग बॉस एक स्क्रिप्टेड शो है, लेकिन हम जब वहाँ पे गए तो पता चला कि ये पूरा रियलिटी शो है। आगे कुछ होता है ये हमें भी नहीं पता चलता है और कुछ हम वहाँ पे छिपा भी नहीं सकते, हम जैसे हैं वैसे वहाँ पे दिखते हैं। और वो अच्छा लगा कि लोगों के यहाँ पे हम 24/7 हम जैसे हैं वैसे पहुँचे, इसलिए वो बिग बॉस का जो प्लेटफॉर्म था तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा था। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। किस तरह से एक्साइटमेंट है आज की शाम को लेकर? बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है एक्चुअली, बिकॉज हम सब एक दूसरे को जानते हैं, 3 सीजन हो चुके हैं, पर कभी ऐसी सबसे मुलाकात हुई नहीं। एंड बीच में जो भी सारे कोविड रिस्ट्रिक्शंस थे तो और भी मुलाकात होना मुश्किल था, बट आज व्हेन रिस्ट्रिक्शंस आर नॉट देयर, वी आर अलाउड टू मीट, वी कैन हग, वी कैन ग्रीट। आई थिंक आज सब लोग हम यहाँ पे मौजूद हैं, तो आई थिंक इट्स रियली अ ग्रेट फीलिंग। बिग बॉस हैज़ बीन अ वेरी फैसिनेटिंग राइड एंड हर एक की अपनी अपनी जर्नी हम यहाँ पे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं एंड अपने ही लोगों को दोबारा एक बार यहाँ पे मिलना बहुत ही खुशी की बात है। बिग बॉस मराठी की बात की, क्या कुछ ऐसा स्पेशल आपको नजर आता है जो बिग बॉस नजर नहीं आता? तो बिग बॉस हिंदी में नज़र नहीं आता, पता नहीं यार, मैं बोल नहीं सकता हूँ बिकॉज बिग बॉस हिंदी मैंने अभी तक किया नहीं है। बट आई थिंक व्हाट्स ऑलवेज स्पेशल अबाउट मराठी और बिग बॉस मराठी इज़ दैट बीइंग अ महाराष्ट्र आई कुड से कि मैं लोगों को रिलेट कर सकता हूँ, लोग हमें रिलेट कर सकते हैं। सारे तीनों के तीनों सीजन्स बहुत ही फैंटास्टिक हुए हैं एंड आई थिंक एक डिग्निटी के साथ डिग्निटी मेंटेन करके सारे तीनों सीजन्स सफलता से कामयाब हो चुके हैं। एंड आई थिंक महेश मांजरेकर एन इनक्रेडिबल होस्ट अलॉन्ग विद सलमान खान इन हिंदी। सो आई थिंक मैं कंपेयर तो नहीं करूँगा, लेकिन आई थिंक मेरे बीइंग अ महाराष्ट्रन मेरी जो जर्नी थी बिग बॉस मराठी में तो वो काफ़ी मज़ेदार थी, बढ़िया थी। तो आई थिंक दैट्स अबाउट। मैंने एक्चुअली ये सोचा तो नहीं है, बट आई थिंक येस, कभी अगर एक ज़िंदगी में ऑफर आती है तो आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स अप टू द सर्कमस्टांसेस दैट टाइम कि मैं कौन सा शो कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, तो वो सारे कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है कि मैं हिंदी करूँगा या नहीं। बट आई थिंक इट इज़ एन इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म फॉर एनी एक्टर और एनी इंडिविजुअल हु वांट्स टू मेक अ नेम। सो आई थिंक या आई माइट डू।
टोटल है, ऊपर नीचे होता है, टेंशन नहीं है। मेरे हिसाब से तो इतना भी नहीं, थोड़ा इतना ज़्यादा नहीं, बहुत बैकग्राउंड ब्लर हो रहा है, सब्जेक्ट ब्लर नहीं हो रहा, वो ऑब्जेक्ट है पीछे। क्या ऐसे ऐसे झाटू सा बन के रहने का, झाटू में रहेगा। तो क्या कर रहा हूँ? अभी होगा तो बंद करने के लिए आता। नहीं नहीं, मत मैं खड़ा हूँ यहाँ, मेरा इन हाउस है। सबको काम करने देने का रतन, क्या बोलते हैं? चलो बहुत बढ़िया, यही इंटरव्यू चाहिए था मेरे को जो कट गया। कौशल भाई, हाँ पांडे मेरा सीनियर है। कोने का लगा ले, वहाँ प्लग खाली है। कॉपी कराओगे ना? घर के तो इवेंट घर का
जानता हूँ, तो इसके लिए रोल था उसका। किस तरह से देखते हो? Obviously, we all were looking forward to it because पिछले 2 सालों से हम मिले नहीं थे and स्मिता की ये पार्टी, जब भी उसे ये पार्टी थ्रो करनी होती है, she always first asked us कि तुम लोगों की डेट्स है क्या, मिलना है and all that. Honestly speaking, ये पार्टी हमारी पिछले साल ही होने वाली थी जब बिग बॉस मराठी सीजन 3 का ग्रैंड फिनाले होने वाला था, बट अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया. सो फाइनली आज वो पार्टी हो रही है. मैं आते वक्त रास्ते में इतनी ज़्यादा खुश थी, मैं लिटरली गाड़ी में अकेले ही म्यूज़िक लगा के डांस कर रही थी बिकॉज आई वॉज सुपर डुपर एक्साइटेड कि मैं सबसे मिलूँगी इतने दिनों बाद. आते ही मुझे मेरे बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स मिलने लगे. हालांकि बीच बीच में मैं उन सबसे मिलती रहती हूँ, सबके टच में रहती हूँ. ऐसा नहीं है कि मिले ही नहीं है कई सालों से. ऑफकोर्स मिलते जुलते हैं बट एक साथ मिलना वो हो नहीं पाता. एंड थैंक्स टू स्मिता कि बिकॉज ऑफ स्मिता ये इनिशिएटिव हर साल लेती है, वी आर एबल टू कैच अप. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव सो मच फन. मैं सच में इतना ज़्यादा मिस कर रही थी सबको एक साथ मिलना एंड टुडे वी ऑल आर हियर, सो आई एम सुपर हैप्पी. कोई ऐसी मेमोरी जो आप शेयर करना चाहते हैं? कोई ऐसी मेमोरी, एक मेमोरी हो तो बताओ. ये तो मेमोरीज़ का मतलब पूरा अफसाना है और इस अफसाने का अगर एक किस्सा भी अगर बयां करने जाओ तो दूसरे किस्से के साथ इनजस्टिस हो जाएगा. हमारी पूरी जर्नी ही इतनी शानदार रही है सबकी, फिर वो चाहे मेरे सीज़न मराठी सीज़न की हो, बिग बॉस मराठी सीज़न 1 या बिग बॉस सीज़न 12 जिसमें मैं थी. और I think Saurabh is going to come, I heard so. But yeah, I'm very close to Shiv, Shrishant's wife, so I'm missing them more. And because में तो मेरा जर्नी बहुत शॉर्ट रहा, उसके बाद हमारे इतने सारे मेमोरीज बन गए तो वो मिस ज़्यादा था. कोई ऐसा प्रोजेक्ट आने वाले समय में would you like to share something about? अभी आया दिल रुसिया, आपने देखा दिल रुसिया? जो आपने नहीं देखा अभी तक, 1 करोड़ व्यूज़ हो गए. आई एम सो ओवरवेल्म्ड. प्लीज शो मोर लव टू इट एंड बहुत जल्दी बहुत धमाकेदार सरप्राइजेस आने वाले, बट आई एम नॉट अलाउड टू से नाउ, आई हैव टू वेट. Okay, so your journey was very small. Yes. So if you get a chance to go inside the house one more time, so will you go? Why not? I am grateful to Big Boss. Like Big Boss की वजह से मैं यहाँ हूँ, मैं बॉम्बे में हूँ, आप सबके साथ बात कर पाती हूँ. तो अगर वापस थोड़े दिनों के लिए जाना होगा तो मैं जाऊँगी. पूरे टाइम के लिए I don't think so I can stay. You know, I'm someone who is not very controversial. I'm someone who doesn't like to fight and all ज़्यादा. तो घर में ना माहौल ऐसे बन जाते हैं कि मैं तो पागल हो जाऊँगी, है ना. तो थोड़े टाइम के लिए जाना होगा. I would love to. Why not? Welcome. Bye bye.
स्मिताची बिग बॉसची पार्टी आणि स्मिता आमच्या बिग बॉस नंबर 1ला पार्टी दिली, 2 झाल्यावर 2 पहिली आणि दुसऱ्याला पार्टी दिली, आज पहिली दुसरी आणि तिसरी अशी मिळून तिघा बिग बॉस सीझनची 3 सीझनची आज मस्त पार्टी आहे. एन्जॉय करणार आहोत, धमाल करणार आहोत. बताने का लॉक कर देना, ठीक है, लॉक कर दो. अरे फोन आ गया. ये गलत है, गलत है, इवेंट खत्म होने वाला है. समझ लो आपको क्या करना है. थैंक यू सो मच.